to my channel. Today we are going to talk about Aquarius Ascendant and the predictions for the month of April 2023. Now the Aquarius Ascendant people have been facing a very busy schedule since last 2 to 3 months, and this situation is going to continue in the next 2.5 years because Saturn sitting in the first house will bring a lot of responsibilities because it is aspecting the house of profession with its 10th aspect. Aquarius ascendant people are usually employed in the domains that are related to petrochemicals, defense sector, property or land related work and research, since the mysterious sign of Scorpio falls in the 10th house and is dominated by Mars. For your ascendant, Saturn is the owner of both 12th and the first house, and as a result, life is all about taking responsibility, hardship, and slogging at the workplace. Now, coming to the predictions for the month of April, from 16th of April to 15th of August, you will get an opportunity to travel to foreign countries, and this travel will be related to work as Saturn has started aspecting the 10th house more firmly. It is going to increase your work responsibilities and load substantially. And if you refuse this additional work coming to you or you try to run away from this workload, then this Saturn is going to punish you. When Saturn entered into the 12th house on March 2020, Aquarius ascendant people would have started to feel a lot of loneliness and seclusion from the other people who are important to them. This Saturn coming in the first house is a very good news because this Saturn is going to liberate you from the loneliness that you have felt since last 2.5 years. Saturn here is going to increase the responsibilities, give you very long working hours with relatively lesser amount of pay, but will also provide you a golden opportunity to build your skill sets in the next 2.5 years that is going to serve you for your lifetime. In the month of April, the good part that is going to happen is that Venus is going to be present in its own sign in the fourth house, and this would mean that from 6th of April to 1st of May, the domestic environment is going to be very peaceful for you. Jupiter is going to move into the third house on 22nd of April, and it will start to improve rapport with your spouse, luck favoring you as well as protecting the house of gains in the next 1 year. But these things will not transpire immediately. All those people who are single will also get an opportunity to get married because Jupiter will aspect the seventh house with the fifth aspect. You will need to upskill yourself in the next year, and focus will be on making an effort for increasing the knowledge base in the next 1 year time frame. There is also an exchange of the third house and fifth house lord that is going to take place in April. Mars is going to be in the sign of Mercury, and Mercury is going to be in the sign of Mars. So both the houses are going to get impacted, but these two planets are enemies of each other. So if you are a student, then the best time frame in April will be in the middle of the month from 16th to 26th of April. And all those students who are seeking to go to a foreign country will get an opportunity to go abroad between 16th of April to 15th of August. This third and fifth house lord exchange would also mean that you can forge new friendships with your neighbors and build on rapport with your younger siblings till 9th of May. Now for you, three planets are going to combine in the third house of efforts and courage. And although Sun is in an exalted position in the third house, it is not going to give you any beneficial impact because Rahu is going to spoil the positive effect of Sun. This Rahu is also spoiling the significators of Mars due to exchange of signs, and that is why this is not a favorable position for participating in the speculation market. People should refrain from it in the month of April. Aquarius ascendant people in general should also refrain from drinking alcohol, and they should practice monogamy, otherwise they get punished by their ascendant lord Saturn. Now there are also certain dates which you need to be careful about in the month of April, and you should avoid taking any key decisions. These dates for you in the month of April are 5th and 6th of April, 14th and 15th of April, and 27th and 28th of April. Avoid taking any key decisions during these 6 days. If you look overall, this ascendant lord position in the first house would mean that your next 2.5 years are going to be filled with a lot of challenges, and it is up to you to decide how you take those challenges and grow further in your life. So that's the summary for you for the month of April.
I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, जब से शनि आपके प्रथम भाव में आया है 16 जनवरी से, तब से कुंभ लग्न के लोगों का जीवन बहुत बिजी हो गया है। काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ाता है शनि जब भी प्रथम भाव में आता है। तो शनि के प्रथम भाव में आने का मतलब ये है कि व्यक्ति की वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराता है तरह तरह के चैलेंजेस देके। अगर आप कुंभ लग्न के लोगों को देखें तो अधिकतर लोग आपको मंगल की अष्टम राशि यानी कि स्कॉर्पियन राशि से जुड़े हुए व्यवसाय में दिखेंगे। तो ऐसे लोग आपको रिसर्च की फील्ड में, पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, डिफेंस सेक्टर, जमीन जायदाद से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य, इन सब में आपको कुंभ लग्न के लोग दिखाई देते हैं ज्यादातर। कुंभ लग्न के लिए शनि 12वें और प्रथम भाव का मालिक बनता है और इसीलिए सारे जीवन दूसरे लोगों की सेवा करना, जिम्मेदारियां लेना, बड़ी बड़ी अपने कार्यस्थल पे मेहनत करना, ये सब चीजें कुंभ लग्न के लोगों को जीवन भर मिलती हैं। अभी अगर अप्रैल के प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो 16 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक के समय में शनि आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी देगा और हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी फॉरेन चले गए हों। ये दशम भाव को देखेगा अपनी 10वीं दृष्टि से और आपके ऊपर धीरे धीरे करके अगले 2.5 सालों में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाना शुरू कर देगा। जितने भी लोग इन जिम्मेदारियों को वहन नहीं करेंगे या जो काम से दूर भागेंगे, उनको फिर ये शनि नेगेटिव परिणाम देगा, उनको ये पनिश करेगा। शनि का काम ही है जिम्मेदारियां लेना और ऐसे व्यक्ति जो न्यूट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं उनको शनि जीवन में आगे बहुत सारी चीजें ला के देता है, चाहे वो मटेरियल प्लेन पे हो चाहे स्पिरिचुअल प्लेन पे हो। शनि जब आपके 12वें भाव में आया था मार्च 2020 में, वह उस समय से लेके दिसंबर तक का समय पिछले साल का आपके लिए बहुत अकेलेपन का समय था, क्योंकि आपका लग्नेश 12वें भाव से भ्रमण कर रहा था। शनि का प्रथम भाव में आना यानी आपका वो अकेलापन दूर हो करने का कार्य करेगा और आपके ऊपर कार्य का बोझ बढ़ाएगा। तो आपके जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए घंटे हैं, वर्किंग आवर्स, वो ये शनि बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और उसके मुकाबले में पैसे की आपको ग्रोथ उतनी नहीं मिलेगी इस समय में। लेकिन शनि का प्रथम भाव में आना यानी कि आपके लिए स्किल सेट डेवलप करने का समय है और ये शनि अलग अलग तरह के चैलेंजेस लाके वो स्किल सेट डेवलप कराता है और आप उसको कैसे पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि शनि आपको आगे जाके किस तरह के परिणाम देता है। जो चीज अच्छी हो रही है अप्रैल के महीने में कि शुक्र चतुर्थ भाव में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके घर का वातावरण बहुत ही सुखद बीतेगा। 6 अप्रैल से लेके 1 मई तक जब तक शुक्र यहाँ विराजमान रहेंगे, आपके घर में बहुत ही शांति का माहौल बनेगा और आपको बहुत सुकून महसूस होगा अपने घर में। गुरु तृतीय भाव में मूव कर जाएंगे 22 अप्रैल को और जब ये आएंगे यहाँ तो अपनी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे डालेंगे। तो जितने भी लोगों की शादी नहीं हुई है उनको अगले 1 साल तक गोचर में शादी करने के लिए गुरु हरी झंडी दिखाते रहेंगे। इसके अलावा ये आपके भाग्य स्थान को और लाभ स्थान को भी देखेंगे और इनसे जुड़ी हुई चीजों की भी रक्षा करेंगे। लेकिन ये आपको परिणाम इमीडिएटली नहीं मिलेगा, 1 साल में धीरे धीरे करके आपको इस तरह के परिणाम आते हुए दिखेंगे। और ये समय है गुरु के चीज़ों को इस्तेमाल करने का, यानी अगर आप अपना स्किल सेट बिल्ड करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र के एरिया में अपना ज्ञान बढ़ाने का काम करते हैं 1 साल में, तो ये गुरु का ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अप्रैल के महीने में तृतीय और पंचम भाव के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं बुध और मंगल। मंगल बुध की राशि में बैठा हुआ है और बुध मंगल की राशि में बैठा हुआ है और हैं ये दोनों शत्रु, इसलिए दोनों ही भावों के परिणामों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अप्रैल के महीने में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का समय आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करने की दृष्टि से सबसे अच्छा समय है। और जितने भी छात्र बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए 16 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है विदेश जाने की दृष्टि से। अप्रैल के महीने में आप अपने कोई नए पड़ोसी आए तो उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं और आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी इस समय में अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब अप्रैल में 3 ग्रह आपके तृतीय भाव में एक साथ मिल रहे हैं और तृतीय भाव से आप व्यक्ति के प्रयत्न और उनकी हिम्मत देखते हैं। अब यहाँ सूर्य अपने उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन सूर्य के अच्छे परिणाम यहाँ बैठा हुआ राहु आपको लेने नहीं देगा। राहु यहाँ बैठ के ना सिर्फ सूर्य को खराब करेगा, बल्कि ये जो मंगल और बुध का स्थान परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से मंगल के भी परिणामों पर वो प्रभाव डालेगा। तो अगर आप
शेयर बाजार से संबंधित व्यवसायों में है तो अप्रैल का महीना धन कमाने की दृष्टि से कुछ खास अच्छा नहीं है। आपको शेयर बाजार से इस समय में कोई आमदनी नहीं होगी, क्योंकि ये राहु यहाँ बैठ के उल्टा बड़ा नुकसान करवाने की क्षमता देता है। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए। तो कुंभ लग्न के लोगों के लिए अप्रैल में वो दिन है 5 और 6 अप्रैल, 14 और 15 अप्रैल और 27 और 28 अप्रैल। इन 6 दिनों में कोई भी की डिसीजन लेना आप टालिए। ओवरऑल ये शनि का लग्न स्थान में आना आपके लिए काफी दूरगामी परिणाम लाके देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो दशम भाव पे पड़ रही है, तो आपको अपने कार्यस्थल पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगले 2.5 साल में आप जो भी सीखेंगे यही आपको आगे जीवन में लेके जाएगा। तो ये आपकी समरी है अप्रैल के महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।